Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 8 students, we are again going to continue with chapter 11 quadrilaterals and its basics. And today's part is part 2. Those who have not watched the starting part, that is the introduction part 1, I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and see that part, and then you see this one. Then what will happen? The concept will be much more clearer and it will be easy for you to solve the sums. Now today we will start exercise 11.1. So we are going to start today only exercise 11.1. Now before starting exercise 11.1, we must know certain concepts or certain terms, and then we will start 11.1. So first concept is what? Diagonal of a polygon. So diagonal of a polygon क्या है? So a line segment which joins two non-adjacent vertices of a polygon is called a diagonal. Now line segment, okay, line segment means a line where the endpoints are fixed, okay. So a line segment which joins two non-adjacent vertices. vertices मतलब क्या है? ठीक है, तो ये है एक तो पिक्चर, इसका नाम क्या है? चार तो साइड है, 1 2 3 4, सो इट इज अ क्वाड्रिलैटरल. वेरी इजी, इसका नाम क्या है? क्वाड्रिलैटरल. और इसका कितना साइड है? 1 2 3 4 5, सो इसका नाम क्या है? पेंटागन. ओके, 5 तो साइड है. ठीक है, अभी ये क्वाड्रिलैटरल में ये कोना कौन सा है? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो. 4 ठो कॉर्नर्स है. ठीक है, ये कॉर्नर्स को ही बोलते हैं वर्टिसेस. ओके, नाउ दीज कॉर्नर्स, इफ आई टेक P and Q, then they are side by side only, so they are only adjacent vertices. Non adjacent vertices means ये इधर है तो ये नहीं लेंगे, दूसरा वाला लेंगे, so R लेंगे. P is a vertex, Q is a vertex, R is also a vertex, S is also a vertex. If I take P and Q, then P and Q are what? Adjacent. Okay, side by side. मतलब मेरा एक तो रूम है, सपोज तुम लोग घर में रहते हो, ये तुम्हारा रूम है और ये तुम्हारा पेरेंट्स का रूम है, तो बीच में ये वॉल है. ठीक है, तो ये वाला रूम, रूम 1 और रूम 2, ये हो जाएगा एडजेसेंट. ठीक है, तो ये वाला रूम का एडजेसेंट क्या है? रूम 2. रूम 2 का एडजेसेंट क्या है? रूम 1. मगर हम लोग को लेना है व्हाट? नॉन एडजेसेंट. सो अगर मैं P लूंगा तो Q नहीं लूंगा, R लूंगा, तो P और R हो गया नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. तो इसको अगर ज्वाइन करेंगे, ये आ गया डायगोनल. तो इधर में ये पिक्चर में डायगोनल कौन सा है? डायगोनल है PR. ठीक है, और दूसरा इफ अगर मैं Q लूंगा तो R नहीं लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा S. तो Q and S is another diagonal, QS. So PR, QS, or SQ, or RP also you can say. Now here what we will take? Here the diagonal in the pentagon, diagonal कितना तो होगा? चलो देखते हैं. A से शुरू करते हैं. A, B नहीं लेंगे, C को लेना पड़ेगा, AC. ठीक है, उसके बाद AD भी ले सकते हैं. ठीक है, AD हो गया. अभी हम B पॉइंट से शुरू करेंगे, तो B पॉइंट से शुरू करने से C नहीं ले सकते, तो BD, और नेक्स्ट वाला मैं लूंगा क्या? BE. ठीक है, EB भी ले सकते हैं. ठीक है, अभी उसके बाद B के बाद C पॉइंट में आएंगे, तो C पॉइंट में D नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे? E. तो CE. अभी उसके बाद CE लिया, CA ऑलरेडी रिटर्न AC. ठीक है, सभी हो गया और कुछ बाकी नहीं है, तो कितना है? 1 2 3 4 5. सो ये सब है डायगोनल्स ऑफ ए
Now, class 8 students, we will understand another new thing, that is types of polygon. So, in the types of polygon, there is convex polygon, concave polygon, regular polygon. Again, we have another one also, irregular polygon. So, let us know about these things. Okay, what is convex polygon? Convex polygon क्या है? In a convex polygon, all the diagonals lie completely inside the polygon. So अभी हम लोगों ने डायगोनल सीखा है. So सभी डायगोनल्स पॉलीगन का अंदर में रहेगा. देखो इधर में अंदर में है. ये वाला डायग्राम में ये भी पेंटागन है, 5 साइड है, तो इसमें भी डायगोनल सब अंदर में है. ठीक है. और नंबर 2 क्या है? एंड ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री. अंदर में ये सब एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल ही 180 डिग्री से कम होता है. ठीक है, उसी को ही बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है. उसके बाद आता है कॉन्केव पॉलीगन. इधर में भी देखो कॉन्वेक्स, ये सब, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सभी 180 डिग्री से कम है. इसलिए डायगोनल्स अंदर है और एंगल, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम है. हर एक एंगल मतलब हर एक इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल. ठीक है, अंदर का. अभी कॉन्केव पॉलीगन क्या है? इन अ कॉन्केव पॉलीगन वन और मोर डायगोनल्स लाई आउटसाइड. एक नहीं तो एक से ज्यादा जो डायगोनल है वो बाहर में होता है. तो देखो ये है एक तो डायग्राम, तो इसका एक तो डायगोनल ये वाला है. अगर मैं रब करके फिर ड्रॉ करूंगा ऐसा वाला. ठीक है, ये एक तो डायगोनल बाहर में है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्केव पॉलीगन. Another condition is what? One or more angle, more of its interior angles is greater than 180 degree. एक या एक से ज्यादा जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, is greater than 180 डिग्री. अभी देखो ये वाला, ये एक तो क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका एक तो एंगल है, दिस इज अनदर एंगल, दिस इज अनदर एंगल एंड दिस इज अनदर एंगल. तो ये सब चारों एंगल में ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है. दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग वन रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर नो? सो इट इज 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री. क्लियर? अभी ये डायग्राम में भी देखो, इधर में मैंने क्या किया? ये एक तो एंगल है, 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 मगर ये वाला एंगल देखो ये 180 डिग्री से ज्यादा है. और दूसरा चीज, एक ठो डायगोनल या एक ठो से ज्यादा, मोर देन वन डायगोनल विल बी आउटसाइड. सो आउटसाइड माने यू कैन ड्रॉ दिस वन ऑल्सो, वन डायगोनल. क्लियर नो? एंड दीज टू वर्टिसेस आर व्हाट? दे आर नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. नाउ कमिंग टू द रेगुलर पॉलीगन. तो रेगुलर पॉलीगन क्या है? ए पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल. जिसका सभी साइड और सभी एंगल अगर इक्वल होगा उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन. तो दिस वर्ड रेगुलर पॉलीगन यू मस्ट नो नाइसली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल बी डूइंग सम्स ऑल्सो. सो रेगुलर पॉलीगन क्या है? जिसका सभी साइड्स और सभी एंगल्स सेम है, इक्वल है. तो ए रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर. इक्विएंगुलर मतलब all the angles are equal, and equilateral means all the sides are equal. For example, I have taken one square. Square, all the 4 sides are equal. ठीक है, ये अगर 4 होगा, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्रैक जैक बिस्किट खाया है तो उसका all the 4 sides are equal. और एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, 4 एंगल ही इक्वल है. क्यों? कितना है? 90 डिग्री. देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. तो समझ में आ गया कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन. लेट अस टेक द concept of irregular polygon. Okay, so what is irregular polygon? A polygon in which all the sides and angles are not equal. It is called irregular polygon. For example, हम लोग एक तो ले लेते हैं रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल क्या है? ये है रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल is a or is not a regular polygon. It is not a regular polygon.
Okay, it is what? It is irregular polygon. Clear or no? Why? Because here if I see the angles 90 degree, this is also 90 degree, this is also 90 degree and this is also 90 degree. मतलब all the angles are equal. That means equiangular. अभी sides are equal? No. Rectangle का ये है length same है, breadth और breadth different है. तो sides are not equal. Okay. Opposites, one pair is equal, another pair is equal, but all the four sides are not equal. Length same है, breadth same है, मगर चारों साइड सेम नहीं है. तो इसलिए रेक्टेंगल को हम लोग बोलेंगे irregular polygon, or we can say it is not a regular. Now we are ready to begin exercise 11.1. Okay. Question number 1. Find the value of x in each of the following. So you have to find the value of x from this diagram. You have to find the value of x. इधर में x है तो x का वैल्यू कितना है. उसके पहले तुम लोग पहले देखो कि ये पिक्चर और ये फिगर क्या है, कितना साइड है. ये एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो. तो ये क्या है? इट इज अ पेंटागन. तो इसका तो ये लाइन एक्सटेंड किया है, छोड़ दो ये एक्सटेंडेड लाइन, छोड़ दो. तो ये पेंटागन है. देखो पेंटागन पांच ठो साइड है. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या समझा है ना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 540. सो व्हाट आई विल राइट दैट थिंग ओनली, सम ऑफ इंटीरियर INT dot interior angles of a polygon. ठीक है, sum of interior angles, interior मतलब अंदर का एंगल of a polygon is equal to 540 डिग्री. ठीक है, अभी हम लोग एंगल करेंगे. कुछ नाम भी नहीं दिया है, तुम लोग चाहो तो ABCDE लिख सकते हो, मगर जरूरत नहीं है जब नहीं दिया है. हाँ, जरूरत होने से भी तुम लोग अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हम लोग विदाउट लिखकर नहीं लिखेंगे. तो पहला वाला क्या है? 120 डिग्री प्लस, उसके बाद क्या है? 85 डिग्री प्लस, उसके बाद क्या है? 2x माइनस 10 डिग्री. उसके बाद क्या है? नहीं है. इधर में है. अच्छा से देखो, ये है 90 डिग्री. ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री. तो इधर में भी ये भी 90 डिग्री. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और नो? बिकॉज इफ यू सी नाइसली, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज वन. सो दिस इज व्हाट? दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर व्हाट? दे आर सप्लीमेंटरी एंगल्स, और लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं. तो ये वाला ऐसा है. ठीक है, तो इधर में एक ठो एंगल, इधर में एक ठो एंगल, मगर हम लोग जो ये परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम लोग ऐसा नहीं लिखते, हम लोग ऐसा करके परपेंडिकुलर. एंड दिस वन ऑल्सो 90 डिग्री. परपेंडिकुलर साइन, दिस साइन, ओके, बॉक्स जैसा, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर सिंबल रहने से ही मतलब 90 डिग्री. ठीक है, सो इफ दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, बिकॉज दोनों को मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है ना? लीनियर पेयर मतलब भी 180 डिग्री. सो ये अगर 90 है तो ये भी 90 है. अभी देखो, ये x है तो ये वाला क्या है? तो ये दोनों एंगल मिलाकर कितना होता है? होता है 180 डिग्री. अगर ये x है तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स. क्लियर? सो आ गया 90 डिग्री, और लास्ट वाला क्या है? 180 माइनस एक्स. ठीक है, इज इक्वल टू 540 डिग्री. हम लोग इधर. ओके, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट. 120 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 2x माइनस 10, ओके, डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस, इसको भी ओपन करेंगे, 180 माइनस एक्स, ओके, इक्वल टू 540 डिग्री. ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री. तो अभी देखो 120, 85, ठीक है, और इधर में 90, इधर में 180. ठीक है, और इधर में है -10. ठीक है, तो मैं जो भी प्लस वाला है ये -10 मैं अभी नहीं ले रहा हूं, तो ये सब मैं ऐड करूंगा. सो 120
120, उसके बाद 85 आ गया कितना 10, 1, 205, उसके बाद क्या आ गया 90, तो आ गया कितना 5, 9, 295, उसके बाद क्या है 180, तो क्या आ गया 5, और 9 और 8 कितना हो गया 17, 1, तो 2, 3, 4, तो 475 डिग्री, 475 डिग्री, देन -10 डिग्री. ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, प्लस 2x माइनस x, 540 डिग्री. अभी यहां से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो 465 डिग्री, और यहां से देखो ये वाला पोर्शन देखो 2x माइनस x, 2x माइनस x मतलब 1x, so 2x minus 1x is what 1x, so I will write only x 1x, और x लिखना सेम ही है, तो इज इक्वल टू 540 डिग्री. अभी सिर्फ x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस ये 465 उधर चला जाएगा. चलो 465 तुम उस तरफ जाओ तो माइनस साइन हो जाएगा, प्लस 465 विल बिकम माइनस 465 डिग्री. तो आ गया x इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 540, 465, सो 0 और 5 नहीं कर सकते तो इसको 3 बना देंगे, इसको 10, 10 माइनस 5, 5. अभी 3 और 6 नहीं कर सकते तो फिर से बोरो करेंगे 4, ये 13 हो गया, 13 माइनस 6, 7, तो आ गया हम लोग का आंसर 75 डिग्री. x का वैल्यू कितना है 75 डिग्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगर ये 90 डिग्री, ये बॉक्स मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है. क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है. ठीक है, ऐसा लाइन करो या ऐसा लाइन करो, ये और ये मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है. लीनियर पेयर. ओके, क्लास 7 में तुम लोगों ने पढ़ा है लीनियर, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर. ठीक है, अभी फिर यहां से भी ये और ये दोनों मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री. अगर ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस x हो जाएगा. तो ये वाला तुम लोग को अच्छा से समझना पड़ेगा. Now class 8 students, we will do question number 1b. So 1b, you can see the diagram or the figure. So here these angles, they are all outside the quadrilateral. Why quadrilateral? This is having 4 sides, 1, 2, 3, 4. But the angles are all outside, so they are known as exterior angle. So this sum we can do with the help of exterior angle formula. But we will not do now with exterior angle. Why we will not do? Because we have not studied about the exterior angle. We have studied only about the interior angle. But suddenly they have given this one. Okay. So in our next part we will study about the exterior angle, the concept, and then we will do again this sum with the exterior angle formula. Okay. But now we will do with the interior angle. So it is a quadrilateral. So what it will be? Sum of interior angles of a quadrilateral. So quadrilateral is how much? Is equal to 360 degree. Now implies sign. Now you will say, sir, here though these values are not given. Yes, it is given. See, this angle, then this angle, then this angle, then this angle. Now where it is given? So it is given like this way. We did just now 4x minus 5. So what we will write here? 180 degree minus and then 4x minus 5. So this is the measure of this angle, because these two angles are what? How much? Linear pair. Okay, and that is 180 degree. So now can I write for this angle, can I write 180 degree minus 4x minus 5, then plus sign. So for this one will be how much? 180 degree, okay, minus 4x plus 20. Clear? Now for this one will be how much? Plus 180 degree minus x, then again plus. I am not taking any bracket. Okay, now this one will be what? 180 degree, okay, then minus and then 5x minus 5, and this will be equal to 360 degree. उसके बाद क्या करेंगे? देखो 180, 180, 180, 180, चलो ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 720 degree. So those who cannot, you can do the rough work. Now
what we will do. Or if you think that this is I am doing directly, let me do little bit, let me show you the steps. So 180 डिग्री माइनस, अभी ब्रैकेट को खोलते हैं, 4x माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है. मैं डायरेक्टली करने वाला था मगर मैंने बंद कर दिया, चलो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली करने से. सो मैं ये ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, 180 डिग्री माइनस 4x प्लस 5. अभी इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 180 डिग्री माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 20, ओके. देन प्लस 180 डिग्री माइनस x प्लस, इधर ब्रैकेट खोलेंगे, 180 डिग्री माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है. अभी देखो अच्छा से, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री, तो कितना आ रहा है 720 डिग्री. ऐड कर लो, ठीक है. नाउ उसके बाद इधर में देखो x का टर्म मैं अंडरलाइन करता हूं, माइनस 4x माइनस 4x, सो माइनस 8x, देन माइनस x, सो माइनस x मीन्स माइनस 9x और माइनस 5x, सो 9x और 5x कितना होगा 14x, सो माइनस 14x, क्योंकि माइनस माइनस वी यूज्ड टू ऐड, ओके. अभी देखो प्लस 5, ठीक है, अच्छा से देखो, ठीक है, टिक मार्क नहीं देंगे, इधर में डबल लाइन देंगे, प्लस 5 प्लस 5, सो प्लस 10, और इधर में एक तो माइनस 20 है तो माइनस 20 इज इक्वल टू 360 डिग्री. अभी देखो ये है 720, ये है माइनस 20, तो कितना आ गया 700. उसके बाद क्या है प्लस 10, उसके बाद मैं लिखता हूं 14x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये दोनों ऐड होने से कितना हो जाएगा 710 माइनस 14x 360 डिग्री, ठीक है. और उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे उस साइड में, तो इधर करते हैं. सो माइनस 14x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस 710 डिग्री. अभी माइनस 14x इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 710 360, 0 आ गया. अभी 1 और 6 कैनॉट, सो बोरो करेंगे 6, और ये हो गया 11, तो इधर में आ गया 5, ठीक है. और 6 माइनस 3 इज व्हाट 3, तो आ गया कितना 350 डिग्री. मगर इधर में देखो ये प्लस 360, ये माइनस 720, सो विच नंबर इज ग्रेटर, माइनस और 720 is greater, so that sign we will put. So we will put here minus 350 degree, और अच्छा से लिखने से minus 350 डिग्री. स्टूडेंट्स यहां पे ही मिस्टेक करता है, सब्ट्रैक्ट तो कर लिया मगर साइन क्या होगा, साइन होगा माइनस. क्यों 710 बड़ा है 360 से, 710 इज कैरिंग व्हाट साइन, माइनस साइन, सो माइनस 350 डिग्री. अभी देखो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट हो गया. अभी x इक्वल टू 350 डिग्री बाई 14, क्लियर. नाउ काटेंगे इसको, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 0. अगेन काटेंगे, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 1 एक्स्ट्रा, 2 5 जा 10, तो आ गया हम लोग का x इज इक्वल टू 25 डिग्री, और ये आ गया आंसर. Okay, now students, those who are new in my channel, if you like the video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. Now students, we will come to question number 1C. So this is the diagram, and you can tell me what is the name of this diagram. Is it a convex polygon or it is a concave polygon? Okay, and mention it in the comment section. Okay, now it has 4 sides, so what we will write, sum of interior angles of a quadrilateral. It is a quadrilateral, 4 sides are there. Okay, quadrilateral is equal to 360 degree. Now we will start, one angle is what 25 degree, then next one is what 45 degree, then next one is what 20 degree, and the last one is what x.
so 360 degree. Now we will add this 25, 45, so how much comes? 10, 1, 4, 5, 6, 7, 70, then again 20, so 20, so it comes what? 90. So 90 degree plus x is equal to 360 degree. Now the last part, x equal to 360 degree minus 90 degree. So x will be how much? 270 degree. And this is the answer. अगर तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते तो 360 और 90 इधर लिखो, 0 इधर से बोरो करो, 16 माइनस 9, 7 and 2, तो 270 आ गया. Now class 8 students, question number 1D. This is the diagram. So it is a diagram of what? Of a quadrilateral. So we will write sum of interior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. After that, all the angles, x first, then 2x, after that 84 degree, after that 96 degree. तो आ गया कितना? 360 degree. तो x मतलब 1x plus 2x 3x, ओके, प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे. ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा? 84, 96 ऐड करते हैं, 4 और 6 10, 1, 9 plus 1 10, 10 plus 8 18. ठीक है, तो इधर आ गया 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. अभी 3x इक्वल टू 360 डिग्री, 180 डिग्री, चलो चला जाओ उस साइड में, तो माइनस 180 डिग्री. और इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा? 180 डिग्री. जिसको नहीं आता डायरेक्टली करना तो वो सीख जाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है, ताकि बाद में तुम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो. ठीक है, सो 0 0, तो 0 आएगा. अभी ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, 16 माइनस 8 8 और 2 माइनस 1 1, तो 180 डिग्री. अभी क्या करेंगे? x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3, तो काटेंगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, तो क्या आ गया? x इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, ये वाला 600 नहीं है, ये डिग्री है. ठीक है, 180 डिग्री. ठीक है, बाद में तुम लोग समझोगे ये एक तो 0 है, नहीं ये डिग्री है. 180 बाई 3, सो 60 डिग्री. तो ये आ गया हम लोगों का आंसर. ठीक है, तो question number 1, I think everyone has understood nicely, and this question number 1 we have used the formula of sum of the interior angles. Clear? No, we have not used the sum of the exterior angles, that we will use in our next part. Okay, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.